Hello everyone. Now, today we'll solve exercise 5.1, the continuity and differentiability. The first question we have, prove that the function f of x equal to, okay, 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3, and at x equal to 5. Okay, so for continuity, the most important thing that you have to follow for continuity, you have to follow two most important points. So the first point, we can say that the line method, okay, and the second point you have to follow this LHL equal to RHL equal to f of a. These 2 points you have to follow always. Okay, everyone knows what is the meaning of LHL, what is the meaning of RHL, and what is the meaning of f of a. F of a means the value of a function at x equal to a, where a is a point where we have to check the continuity. So should I discuss question number first or not? Just tell me. Be quick. Yes. 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 डिस्कस करना है then Yes. okay. Yes. Okay, no issue. Okay, so we have to prove that here this function, the given function f of x equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 and at x equal to minus 3 and at x equal to 5. Listen, the method will be same for all these points. Okay, so pick any point. आपको जो अच्छा लग रहा है वो पॉइंट मुझे बताओ जिसको मैं चेक करके बताऊं. 0 पे -3 और 5 मैं एक पे चेक करके बताऊंगा, रेस्ट आपको करना है. बताइए. -3. -3. Okay, no issue. So for x equal to -3, okay, for x equal to minus, we have to check the continuity of this function at x equal to -3. Okay, मैंने क्या बताया? First follow the line method. What is line method? Draw a line. Okay, locate that point on that line. कौन सा point? -3. Okay, now आप यहाँ पे देखो -3 पे -3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? Tell me the function which is just greater than -3. -3 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है? Yes, Tanay. Tell me that function which is the greater, which is for the x equal greater than -3. बताओ कौन सा function है? We have this function only. There is no other function. Can I write on this side also? We have the same function, that is a 5x minus 3. Understood, Navya? And the left side of that -3 से छोटे के लिए कौन सा function है? जल्दी बताओ. We have the same function f of x equal to what? 5x minus 3. Understood? And for at x equal to -3 पे कौन सा function है? For this point, for -3, which function we have here? कौन सा function है बताओ? The same function, 5x minus 3. So here we have f of x equal to 5x minus 3. Means for all this point we have the same function. But calculate what is the value of f of -3. कितना होगा पहले वो चेक कर लो. कितना आ रहा है? f of -3 पे value. When you replace x by -3, then you have to replace here x by -3 also. So -3 -3. Can we say that this is equal to what basically? -18. Yes. So we got f of -3. So first step done. The line method, you should know what is the line method. I'll tell you. Okay, ये यदि line method आपको समझ में आ गया, then आपकी लिमिट कभी भी गलत नहीं होगी. The second में आपको क्या करना है? LHL should be equal to RHL and it should be equal to what? F of -3. The point is -3. What is LHL? Anybody? What is LHL? It is basically limit x tends to -3 minus f of x. And what is the RHL? It is a limit x tends to, yes everyone, -3 plus -3 plus -3 plus means -3 से छोटा सा बड़ा, just बड़ा, f of x equal to f of -3. F of -3 we have here. F of -3 we have -18.
Understood? Now try to evaluate LHL and RHL. What is LHL here? The limit x tends to -3 minus. And what is the value of function? तो -3 से छोटा में क्या है function 90? Tell me the function which is just less than -3. 5x minus 3. 5x minus 3. 5x minus 3. Okay. Now for the x tends to -3 plus -3 से just बड़े के लिए कौन सा function है? We have the 5x minus 3 only, and that is equal to -18. Okay. What is the meaning of -3 plus? Since x tends to -3 minus or x tends to -3 plus or x tends to 3, in all x is nearly equal to 3. Are you getting all this? कि ये जो आप x tends to -3, sorry -3, okay wait यहाँ पे थोड़ा सा mistake हुई है. Okay, this is here x tends to -3, यहाँ पे -3 है. So all our approaches to basically where it approaches to -3 only. Understood? Tane Yes, sir. कि यदि हमें -3 लिखा रहे, -3 x tends to -3 लिखा रहे, x tends to -3 minus लिखा रहे, x tends to -3 plus लिखा रहे, और x equal to -3, meaning of all this is what it approaches to nearly -3. So in that case what we have to put in the place of x? क्या put करूंगा यहाँ पे? I will put in the place of x as a -3, चाहे वो -3 minus हो या चाहे वो बोलो -3 plus हो. Understood? So we get here -18 equal to -18 equal to -18. It means that बताओ क्या समझ में आ गया यहाँ से? That Function is implies continuous. At f is x equals continuous at x equals -3. x equal to -3. Understood, everyone? So I like fill that पे आप लोगों को ये बन जाएगा ये दोनों 0 पे और 5 पे. Yes, sir. Follow the same method. Okay, just write it on this and follow the same method. Look at the question number 3. Okay, so there is no point is given in there. फिर कैसे check करोगे? Well, point will not given in that case. Okay, क्या मैं बता रहा हूँ? When point is not given, then two options. First option, choose okay or select any general point. Second, select or take critical point. Means if I talk about for the first A question, f of x equal to x minus 5. Here there is no any critical point. यहाँ पर ऐसा कोई x नहीं है जिसपे आपको फंक्शन क्या होगा undefined होगा. So there is no any critical point. Okay. For what about this B? There is a critical point x equal to 5. जहाँ पर फंक्शन undefined हो जाएगा. Then I understood this part. x equal to 5 पे ये फंक्शन undefined हो जाएगा. Means critical point तो 5 है. But it is already there कि x equal to not 5. यहाँ पर already there है. हम x equal to मतलब यदि ये नहीं रहता तो हम 5 पे चेक करते हैं. लेकिन यदि वहां पे लिखा गया है कि 5 है ही नहीं, तो is there any need to find the value of this function at 5? Understood? Hello? Yes. Okay. तो आप क्या करोगे इन दोनों सिचुएशन में? क्रिटिकल सॉरी एनी कोई जनरल पॉइंट ले लोगे. सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में कहां चेक करना है? कहां चेक करना है? कोई भी पॉइंट पे चेक कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बोला x नॉट इक्वल टू -5, x 5 -5 नहीं है. उनके अलावा ये बताइए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं? दैट वी हैव टू चेक. ओके, तो चाहिए तो आप यहाँ पे 5 पे यदि थोड़ा सा चेक करके देखोगे
तो भी आप चेक कर सकते हो, लेकिन वहां पे थोड़ा माइनस आ जाएगा, माइनस इनफिनिटी प्लस नहीं, 5 पे चेक नहीं करना है। यहाँ पे भी कोई जनरल पॉइंट लो, यहाँ पे भी कोई जनरल पॉइंट लो, व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पे कौन सा आप पॉइंट लोगे, यहाँ पे आपको क्रिटिकल पॉइंट लेना पड़ेगा। कौन सा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लेंगे हम लोग, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर दिस, तो 5 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि ये 0 बन रहा है कहाँ पे, 5 पे। तो आपको दो टर्म्स को मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जब आपको पॉइंट्स नहीं दिया रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन में पॉइंट्स दिया है कि कहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है या कहाँ पे प्रूव करना है, अंडरस्टूड, बट इन दिस केस देयर इज नो पॉइंट गिवन। तो उस सिचुएशन में हमें दो कंसेप्ट याद रखना है। फर्स्ट, इधर सेलेक्ट एनी जनरल पॉइंट और टेक क्रिटिकल पॉइंट। तो फॉर दिस क्रिटिकल पॉइंट विल बी द 5 एंड फॉर ऑल दिस यू हैव टू टेक एनी जनरल पॉइंट। ओके, तो कैसे जनरल पॉइंट लेकर के सॉल्व करते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम दैट फॉर दिस, कौन सा क्वेश्चन करूं, बी करूं, सी करूं, डी करूं और ए करूं, इसमें से मैं दो क्वेश्चन करके बताऊंगा, फिर जल्दी बताइए। हेलो, Fourth वाला D. डी, ओके, डी में तो क्रिटिकल पॉइंट है, पहले कोई जनरल पॉइंट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। B. कैन आई टेक सी और बी, सी और बी में से कोई बताओ, सी और बी में से जल्दी बताओ। B. बी, B. ओके, बी, ठीक है सर। फॉर बी व्हाट वी हैव टू given, what we have here, f of x equal to 1 upon x minus 5, and we have to check, examine the following function for continuity. Okay, let x equal to c, c is the any point, but यहाँ पे लिख दो कि c belongs to real number, c belongs to what, real number, for all c belongs to real number, कोई भी c लेते हैं, कोई भी c वो रियल नंबर का है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूटी। तो यदि मैं आपको पूछूंगा कि ये यदि हमारा c है, तो c के इस साइड वाला का फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन कितना है बोलिए, 1/x - 5 है, सही है। इस साइड का फंक्शन क्या है सर, यहाँ पे भी फंक्शन तो वही रहेगा, क्यों, एक ही फंक्शन दिया है, 1/x - 5। अरे गेटिंग ऑल दिस, और c पे भी कितना फंक्शन है सर, c पे भी 1 कितना upon फंक्शन, 1/x - 5। तो यदि 1/x - 5 तो व्हाट विल बी द f of c, x equal to c है ना, तो f of c कितना हो जाएगा, 1/c - 5। now this is the, now after that find out what, LHL। okay, क्या होगा LHL, लिमिट x टेंड्स टू what, c minus f of x। आप लोग बताइए, लिमिट x टेंड्स टू c minus f of x कितना होगा, 1/x - 5। अच्छा, c माइनस में भी तो हम c ही पुट करते हैं ना, तो यदि c पुट करोगे x की जगह वो कितना आ जाएगा, 1/, बोलो, c - 5। this is LHL। what about RHL, the same, limit x tends to c plus and the function will be the as it is, function यही रहेगा, तो 1/x - 5। और c प्लस में भी हम x की जगह कितना पुट करते हैं, I told you c plus, c minus, a plus, a minus, a tends to, all means x is approaching to a or x is nearly equal to a, so can I write in the place of x as what, c to 1/c - 5। so if you look at this, f of c, LHL and RHL सारे के सारे क्या है, सेम है या डिफरेंट है, it is same one or different one, same, so it means that the f is, yes, continuous at in their domain, अच्छा, क्या c का वैल्यू मैं -5 ले सकता हूं, c का वैल्यू -5 ले सकता हूं, नहीं, यहाँ पे बोला ना x इक्वल टू नॉट -5, तो c 5 के अलावा कुछ भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, अंडरस्टूड। हेलो, Yes sir. ओके, चलिए अभी चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर डी को। ओके, डी, व्हाट वी हैव, f of x here, f of x equal to mod of x - 5। what is the critical point, check for x equal to how much, x equal to 5, 5 के लिए चेक करके बताओ, यदि 5 के लिए चेक करके बताओगे आप यहाँ पे, तो we have x equal to 5 here, understood। now tell me which function we have to write on this side, f of x equal to what, f of x equal to what, Dakshyani,
Can you tell me what we have to write on in the just right side, just right part of 5? Yes, X Dakshan. minus 5. It is x minus 5. Okay, x minus 5. No issue, x minus 5. And what is the left side? Left side, Dakshani. What we have to write on in the place of f of x? The same, sir. X minus 5. Okay. Arjun, what we have to write on in the left side of x equal to 5? Sir, I don't know, sir. Maybe You don't X know. 5 minus x. It is really 5 minus x because in the left side, this the inside part of the modulus will be negative. So that's why we have to write on the minus of x minus 5. मॉड का दो पार्ट होता है, मैं हर टाइम से बताता हूँ, आप ध्यान नहीं देते हो। मॉडुलस के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव रहेगा मॉड, नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा बाहर में। तो इफ यू टेक द एनी वैल्यू व्हिच इज ग्रेटर देन 5, से 6 ले लो, तो 6 माइनस 5 क्या होगा? तो मॉड के अंदर में 1 आएगा, मतलब ये पॉजिटिव 1 है, तो हम मॉड को प्लस में ही लिखेंगे, मतलब जैसा वैसा लिखेंगे। बट इफ यू चूज एनी वैल्यू लेस देन 5, जैसे लेस देन 5 में आप ले लो 4 लिया तो कितना होगा? -1। तो जब मॉड के अंदर में -1 आएगा तो आपको बाहर में एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा और फिर वो x लिखना होगा। So if you look at the less than 5, तो यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा आएगा। So now we have the two function and what is the at x equal to 5? x equal to 5 पे f of 5 कितना हो जाएगा बताओ? अरे यहाँ जाके 5 डाल दो ना, it will be the 5 minus 5, 0. Understood? Yes, sir. Now find out LHL. What is LHL? Sir, LHL is limit x tends to what? 5 minus और फंक्शन कितना होगा? 5 minus मतलब 5 से छोटा में क्या होगा फंक्शन बताओ? 5 minus x. Shut up. अच्छा 5 minus x मतलब x minus 5. Sorry. It's a minus of x minus 5. Okay. Now, what we have to put in the place of x here? Srihari. x के जगह पे क्या पुट करूंगा मैं यहाँ पे? 5 डालोगे ना? 5. Yes. 5 minus also means that we have to put the what? The 5 only. So when you put 5, तो कितना आ जाएगा? 5 minus 5 minus of 5 minus 5. 5 minus 5. Can we say that it is basically equal to 0? And what will be the RHL? That will be the limit x tends to 5 plus same we have to write on here x minus 5. Okay, and when you put the value, you will get 5 minus 5, that is equal to 0. So can we say that here LHL? Okay, can we say that here the value of RHL, LHL, and the function all are equal? That's why it is a continuous. So we have f of x equal to what? F of x equal to x to the power n. So f of x equal to x to the power n. And where we have to check? At x equal to n. X equal to n पे check करना है ना? First, what will be the f of n? कितना होगा? It will be n to the power n. Okay, what will be LHL real? LHL कितना होगा? Limit x tends to n minus. And it is what? The positive integer मतलब 1 से start होगा। सही है? 1 2 ऐसे सही है कि नहीं है? तो यदि आप Yes. यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे x to the power n है ना, तो क्या पुट करोगे? In the place you have to put the n only. But थोड़ा सा छोटा होगा तो 1 थोड़ा सा छोटा कितना होने वाला है? थोड़ा छोटा कितना होगा? 0.999 यही रहने वाला ना, to the power 0.999. तो x तो n है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जो मिलने वाला that will be the n to the power n only. What for the RHL? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा. Limit x tends to what? n plus. So x to the power n, that will be the n to the power n only. So function LHL, RHL, all are what? Equal here. That's why f is continuous. Understood? Now try to solve question number 5. Okay, and tell me, is the function f defined by whatever we have here is continuous at x equal to 0, at x equal to 1, and at x equal to 2. Fast, do this calculation. If you want to check this function is continuous at x equal to 0 or not, okay, first we have to make, याद है क्या पता बोला था बनाने को? The line. Okay, line method. So this is 0. Okay, tell me the function which is the right side of 0. इस साइड में क्या फंक्शन है f of x का?
X. x है, 0 से बड़ा मतलब 1 से तो छोटा ना, yeah, this is the one ना, this function is less than equal to 1 and this function is greater than 1. So I will choose 5 when x is greater than 1. बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 से जस्ट बड़ा के लिए बताइए क्या होगा। तो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से तो छोटा है, it means that we have to take the function here x. Okay, what about left side of 0? वो तो ऑलरेडी 1 से छोटा है, फिर और है, सही है कि नहीं है, बताओ। Yes, sir. यस, इट इज लेफ्ट साइड ऑफ 0 में भी क्या होगा, कौन सा फंक्शन होगा, लेफ्ट साइड ऑफ 0 इट्स आल्सो व्हाट, लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, x। तो यहाँ पे भी फंक्शन आएगा कितना, x। और 0 के लिए भी क्या होगा, वही सेम फंक्शन होगा, f of x इक्वल टू 0, सॉरी f of x इक्वल टू x। व्हाट इज f of 0, 0 के लिए कितना हो जाएगा 0। अच्छा अभी LHL बताओ कितना आ रहा है, LHL मतलब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x। तो 0 माइनस के लिए फंक्शन कितना है, 0 छोटे के लिए फंक्शन कितना है, x। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 देयर यू विल गेट 0। व्हाट अबाउट RHL, RHL बताओ कितना होगा, बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या है, x, और पुट भी करना है कितना है, x की जगह 0, सो विल गेट 0। तो LHL RHL एंड फंक्शन ये तीनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इट इज अ कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अंडरस्टूड, हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ओके। यदि ये तीनों इक्वल आ जाए तो f is continuous. Understood. Now for the at x equal to 1 for 1, बताइए 1 के लिए कैसे चेक करेंगे, तो ये 1 है, तो 1 से बड़े के लिए मतलब क्या है फंक्शन, व्हाट इज व्हिच फंक्शन वी हैव टू टेक फॉर ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े के लिए देखो कितना है 5, 5. और 1 से छोटे के लिए कितना है, कौन सा फंक्शन है 1 से छोटे के लिए, व्हाट इज f of x। लेस देन 1 के लिए कितना है x, और इक्वल टू 1 के लिए कितना है, इक्वल टू 1 के लिए, दिस इज इक्वल टू 1 एंड दैट इज आल्सो x। So can we say that here f of 1 equal to what, 1? सही है ना, अरे 1 पे तो चेक करोगे ना, 1 पे तो चेक करना पड़ेगा ना पहले, f of 1 पे कितना आ रहा है 1, व्हाट इज LHL बताइए, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 1 माइनस, 1 माइनस मतलब 1 से छोटे के लिए फंक्शन कितना है x, और पुट कितना करोगे, x की जगह 1, तो 1 आ गया, व्हाट इज RHL बताओ, लिमिट x टेंड्स टू व्हाट 1 प्लस, 1 प्लस के लिए कितना है 5, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। तो वी हैव हियर LHL okay is not equal to RHL, LHL is not equal to RHL, it means f is discontinuous. Understood? What about for next, at x equal to 2, जल्दी बताइए, कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, 2 के लिए, 2 से बड़े के लिए, 2 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है, 2 से बड़ा मतलब क्या, 1 से बड़ा, हियर इज द 1 ना, तो 1 से बड़ा दोनों, ये 1 से बड़ा है ना 2, 1 से बड़ा 2 है मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए कितना हो जाएगा, अरे 2 राइट इज ग्रेटर देन 1 मींस हियर इज 5, 2 का जो पीछे वाला पार्ट होगा मतलब लेफ्ट साइड वाला होगा वो भी फंक्शन कितना होगा, 1 से बड़ा ही होगा, दैट इज 5, और f of 2 भी कितना होगा, तो 5। यहाँ पे f of x यदि मैं बोलूंगा, f of x तो 5 ही रहने वाला है ना, तो x की जगह मैं यदि 2 डालूंगा तो भी यहाँ 5 रहेगा। व्हाट इज LHL, LHL is 5, व्हाट इज RHL, RHL is 5, and what is f of 2, that is also 5, तो क्या हो गया बोलो, f is Continuous. continuous. Understood? Yes, sir. Okay. Now look at the question number 8. Okay. Question number 8. What we have to find out basically in this question? Question number 8. To find all point of discontinuity of f where f is defined by. So we have f of x equal to mod of x upon x if x is not equal to 0 and 0 x equal to 0. मतलब तुम बताओ ये जो फंक्शन है ये डॉट कुल
वो कौन से पॉइंट पे हो रहा है कनेक्ट, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे ऐसा डॉट फुल हो रहा है ये फंक्शन कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कौन सा वो पॉइंट है, जल्दी बताओ। जहां पे जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज कर रहा है वो तो जीरो पॉइंट है ना, देखो ना जीरो वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन का वैल्यू चेंज हो रहा है, हाँ यस सर। तो डाउटफुल पॉइंट तो हमारा जीरो है, मतलब मैं इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कहां पे चेक करूंगा, जीरो पे, अदर देन एवरीथिंग विल बी फाइन, ओनली जिस पॉइंट पे आपको फंक्शन चेंज कर, जैसे देखो 2x + 3 है, 2x - 3 है, इसका डाउटफुल पॉइंट 2 है क्योंकि 2 पे ही तो फंक्शन चेंज हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखेंगे हम ये -3 है, ओके ये 3 है, ये 3 है, देखो -3 पे भी दो फंक्शन अलग अलग है, 3 पे भी दो फंक्शन अलग अलग है, इसका मतलब जो डाउटफुल पॉइंट है यहाँ पे -3 और 3 है, तो मैं -3 और 3 पे चेक करूंगा, इसी पॉइंट पे हो सकता है डिसकंटिन्यूअस, अदर देन सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है, मतलब वो डाउटफुल पॉइंट हमें पे सॉल्व करना है कि उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं, जैसे 8 क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, तो व्हाट इज डाउटफुल पॉइंट हियर, टेल मी व्हाट इज डाउटफुल पॉइंट हियर, 0. 0, so for question number 8, okay, so I will check add x equal to what, 0, तो 0 पे चेक करना है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द लाइन मेथड, मतलब ये 0 हो गया, अब 0 से बड़े के लिए f of x का कोई वैल्यू बता दो मुझे, क्या होगा, 0 से बड़े के लिए f of x क्या होगा, x/x. ओके, मॉड ऑफ x बाय x, लिसन, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि 0 नहीं है, 0 के आगे हो सकता है और 0 के पीछे कुछ भी हो सकता है, मतलब इनके लिए भी सेम फंक्शन, इनके लिए भी सेम फंक्शन रहेगा, बट 0 नहीं, 0 पे वो फंक्शन नहीं रहेगा, अतः 0 पे तुमको दे रखा है फंक्शन का वैल्यू, बताओ कितना, जब x 0 होता है तो फंक्शन कितना है 0, 0. मतलब आप x यहाँ पे 0 कर दो तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा, और आप x नॉट इक्वल टू 0 करो तो आपको ये वैल्यू मिलेगा, तो मुझे f ऑफ 0 का तो वैल्यू मिल गया है, f ऑफ x 0 कर दिया, कितना मिला 0, अतः f ऑफ 0 से बड़े के लिए जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा, 0 से आगे होगा, तो 0 नहीं होगा उनके लिए कितना है मॉड ऑफ x बाय x, लेकिन ये 0 का राइट साइड है तो मॉड ऑफ x को क्या लिखेंगे हम लोग +x बाय x, तो लेफ्ट साइड का बताओ कोई, 0 से छोटे के लिए f ऑफ x कितना होगा, यस श्री हरि, Yes, sir. 0 से छोटे के लिए क्या होगा, mod x upon x. मॉड ऑफ x नहीं होगा, मॉड x 0 से छोटे में कितना हो जाता है, 0 से छोटा रहता है तो मॉड ऑफ x, 0 छोटा मतलब -1 ना, -1 का मॉड क्या होता है माइनस ऑफ -1, मतलब जो यहाँ पे है उसमें सिर्फ एक बाहर में माइनस लगाना पड़ेगा, तो इफ यू हैव अ नंबर लेस देन 0 इन दैट केस योर मॉड बिकम्स -x एंड द x में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट विल बी द x, सो कैन वी से दैट हियर कि f ऑफ 0 तो हमें मिल गया है फंक्शन का वैल्यू, अभी LHL निकालेंगे, LHL कितना होगा बोलो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बाय x, इनको कैंसिल करो कितना आया -1, व्हाट इज RHL, RHL will be what, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कितना होगा फिर यहाँ पे x बाय x, RHL राइट साइड वाला पार्ट, so it will be equal to 1, so here LHL is not equal to RHL, it means पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है बोलो 0, अंडरस्टूड,